بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ وان ویدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ اچھا جی، تھم نیل پر آپ نے دیکھ لی کہ خان صاحب کی دہائی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، سپریم کورٹ میں ان کا ایک درخواست یا خط بھیجا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ سوال یہی ہے کہ جی ہوں آگے کی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے جو خان صاحب ہیں وہ ایک کچھ مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں، جو میرے نزدیک اور بہت سارے اور جو لوگ ہیں ان کے نزدیک جہاں باقی عوامل اس میں شامل ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی خان صاحب کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ تھا، میرے خیال میں وہ بھی ایک وجہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کی جب حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی، اور اس سے پہلے کا جو سینیریو تھا آپ دیکھ لیں کہ جیسے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور پھر خان صاحب نے اس پر جناب ایک خط بھی لہرایا، اور معاملات کو جس طرح وہ لے کر چلے اور ایک سینٹیمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر وہ جناب معاملے میں بڑا چکیا گیا، اور جناب ہر طرف جو ہے نا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ رولا پایا گیا۔ پھر جب خان صاحب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو وہ جو جناب پورے جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی جانج، ہماری ادھر زبان میں یہ جو برات جا رہی ہوتی ہے انہوں کہتے ہیں جانج باجا پورا لے کے وہ پہنچتے سن، تے پھر جو معاملات جس طرح ان کی ضمانتیں ہو رہی تھیں تھوک کے حساب سے، درجنوں کے حساب نال یقین کرو اینے آسانی نال تو درجن مالٹے نہیں ملتے جس طرح انہوں نے ضمانتیں ملتی رہی ہیں۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کے بعد پھر جس طرح کے فیصلے باقی کورٹ سے بھی آ رہے تھے تھلے لے کتے تک، تو میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس خادم نے تو بہت پہلے ہی ایک آپ کو پوسٹ بھی بتائی تھی، ایسے ہی ایک میرے وجدان میں کوئی تھوڑا گروپ بچپن کا تھا، وہ واقعہ یاد آ گیا، تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ اپنا کردار جس حد تک پیش کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے شاید یہ جو مارچ 2023 کے اینڈ میں جو استاد محترم ہے سعید چودھری صاحب خاص طور پہ ان کا جو ویلاگ ہوتا تھا، تو اس میں کمنٹ لکھ کے ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ یہ بڑوں تک بھی بات پہنچائیں کہ معاملات جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ آگے چل کے بگاڑ اور پیدا ہوگا۔ اور یہ جو ایک گروپ کے متعلق میں انہیں کہتا تھا کہ یہ سارے فساد کی جڑ ہے، اور ریاست کے پاس یہ ذرا بات غور کریں کہ ریاست کے پاس میرے وجدان اور حساب کتاب کے مطابق 15 اپریل 2023 تک وقت ہے کہ وہ ان فسادیوں کو کچل دیں جو اصل فساد کی جڑ ہیں، اور جو پیچھے مین اسکرپٹ رائٹر ہے اور سہولت کار ہیں تو یہ جو 2-4 کا گروپ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کچل دیں تو پاکستان میں امن ہوگا، ورنہ آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات میں تقریباً 25-26 مارچ سے لے کر 10-12 اپریل تک یہ کہتا رہا کہ 15 اپریل 2023 ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے کہ اس میں ان ناسوروں کا سر کچل دیا جائے۔ تو وہ آپ ان دنوں کی جو ویلاگ ہیں سعید چودھری صاحب کے ان میں پڑھیں تو مصطفیٰ وان کے نام سے کمنٹ ہوگا، تو وہ آپ پڑھ لیں ایز اے پروف۔ اور فیس بک پہ بھی اگر آپ میرے پیج کو وزٹ کریں تو وہاں میں نے اشارتاً کئی چیزیں لکھی۔ تو پھر جناب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اور اب خان صاحب جو ہیں وہ ڈفرینٹ معاملات میں ابھی فی الحال تو توشہ خانہ کا وہ جو ایک انہوں نے ڈکلریشن نہیں کی تھی، اس کیس میں یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو ابھی تو توشہ خانہ کا جو مین
केस है जिसमें भी बुश बीवी के बयानात भी JIT में कलमबंद हुई हैं, तो अभी तो उसका नतीजा तो रिजल्ट आना है, तो वो फिर उस दिन मुज़रात की होंगे, वो तुम समझ सकते हो। और उसके अलावा साइफ़र का मामला चल पड़ा है जी बड़ी तेज़ी के साथ। 9 मई के जो यानी मामलात हैं तो सीधा सीधा तो डेफिनेटली खान साहब के लिए यानी जो रास्ते हैं वो यानी क्लोज़ होते जा रहे हैं। कहते ना वो मेरी पोस्ट थी जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब खान साहब को एहसास हो रहा होगा कि जो उन्होंने अपने दौर में यानी जिस किस्म का रवैया रखा और कौमी क़यादत को जिस तरह जेलों में डाला, नाजायज़ नाहक खुद पसंदी में, फिर वो बढ़ के भी सुल्तान राई वाली मारी अमेरिका में खड़े होके कि जी राणा सनाउल्लाह मैं मुछां तो फाड़ के लैके जावांगा, शायद का काम तुझे मैं जाते ही बंद करूँगा और तुम्हारा मैं AC उतरवा दूंगा। तो अब आप ये चीज़ देखें, ये वो कुदरत का इंतकाम होता है। जैसे कि मैंने इन दिनों में यानी पोस्ट भी करता था और इन दोस्तों के भी लॉग में मैं ये एक देता था कि कुदरत हरकत में आ चुकी है। जब एक किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है ना, तो फिर डेफिनेटली अब इंसान है वो जनाब इबरत नहीं पकड़ता, वो इबरत नहीं पकड़ता। अच्छा, अभी भी मेरे कई किस्म की जो दोस्त हैं मैं उनको यूथड़ा कहता हूँ, वो एक जो अब वो पोद रह गई है ना, वो एक वायरस का शिकार है। उस पर वो कौन सा वायरस है, फेसबुक पे तो वो आपको मिल जाएगा, मैंने उस पर कॉलम्स वगैरह भी लिखे हैं और अपनी ओपिनियन दी है कि जेडे हुण तक भी इबरत नहीं पकड़ है जी, वो खान साहब डटे दें, वो फलान है, यह है, और ये आज से 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं दोस्तों को समझा रहा था, काफ़ी हब्स का मौसम था यहाँ हमारे वैली में, मौसम बड़ा अच्छा होता है, बट अपार्ट फ्राम डैट गर्मी थी। तो वो हाँ कूलर भी ठंडा लगा हुआ और ऊपर से पंखा भी चल रहा। तो मैं उन्होंने कहा, मैं यार तुसी ते मैं ना असीं मातड़ बंदे हैं, ठीक है, साड़ी दौड़ ही होंदी कोई चलो जी छोटा मोटा कोई पौनी टन्नी का एक टन्नी का AC घर लग गया, ठीक है, राती बच्चे सो लैन कोई 2-4 घंटे, बस असीं इन्ना ही अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये होता कि दिन के टाइम जनाब पखे के थले ही या बाद तो बाद जनाब को सोलर कूलर जैसे यानी मेरे सिस्टम में घर में भी है, ठीक है जी, असी को ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम 5 मिनट के लिए ये वैदर कंडीशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुसी क्यों खान साहब के पिछे पै दो, वो अटक जेल हैं जिथे कोई एडी चंगी क्लास भी कोई नहीं। और समटाइम सुनन चाहे कि बिजली भी उत्थे अक्सर आंदी जाती रही है। सो उन्होंने तुसी टारजन बनवा के क्यों उदाइयाँ देंदे पैनो भाई मैनू बचाओ तो मैनू इतों कढ़ो, कि जो भी उनको मिलने जाता है तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि मुझे भाई किसी तरीके से यहाँ से निकालें। तो अब खान साहब ने जनाब जो ख़त लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त लिखा है और शायद यानी जो उमर अताब बंदयाल हैं यानी उनके नाम लिखा है और रोना धोना रोया है, मसलन अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिस कर्ब से वो गुज़र रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं, डेफिनेटली गुज़र रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और फिर उन्होंने जनाब वहाँ से यानी कुमक मंगी उन्होंने ना कि कोई नोटिस में और मुझे वहाँ से अडयाला जेल में भिजवाया जाए और मेरे केसेस को रिविज़िट भी किया जाए, मतलब कि रिलीफ दिया जाए। तो अब वो दुहाई तो वो दे रहे हैं ना, ज़ाहिर बात इसी की कि भाई बचाओ बचाओ तो मैनू बचाओ। तो याद रखिएगा कि एग्जांपल दूंगा, मेरी अपनी कोटेशंस होती हैं, मैं किधरों को शायद चोरी करके कभी भी नहीं एग्जांपल देता। कहते हैं ज़्यादती किसी भी चीज़ की ना ज़्यादती यानी वो कह लो मिसाल तौर पर वो ठीक नहीं होती, यानी ज़्यादा किसी चीज़ का होना ना बार बार तुसी करते हो, वो कहते हैं ना कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो इसी तरह ज़्यादती किसी चीज़ की भी होती है, वो यानी मुज़र होती है, ख़तरनाक होती है उस मामले या सेहत की। मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि जी रोज़ एक सेब खाओ, सेब जड़ा है ना वो खाओ तो डॉक्टर को दूर रहो। वैसे केड़ा डॉक्टर है वैसे मैंने अज तक मैं सलूट मारा, ठीक है जी, कि जो अपने पैरों पर आपी कुहाड़ी मारता पे कि सेब खाओ तो डॉक्टर को बचो। वैसे बड़ी अजीब जी गल। खैर, तो जैसे कि वो कहा जाता है ना कि एक सेब खाएं और जनाब आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। तो देखें जब आप बाज़ लोग होंगे ना जोश जाके किसी ने कहना यार सेब खादे करो थोड़ा खून भी बढ़ेगा, आयरन भी बढ़ेगा और आप जनाब टिशन टैट रहोगे और सेहतमंद रहोगे। तो वो बाज़ लोगों की आदत होंगी कि वो जनाब जनाब इधरों सेब फड़िया तो है
ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਖਾਧਿਆ, ਤੀਜਾ ਖਾਧਿਆ, ਦਿहाड़ी 'ਚ किलो 1.5 किलो सेब खा लिया, ठीक है जी। और जहन में यही है ना कि मैं जनाब टार्जन बन जाऊँगा, मैं ताकतवर बन जाऊँगा। फिर वक्त के गुजरने के साथ 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 ये होता है कि जनाब आयरन इतनी ज़्यादा मकदार में आपकी जिसम में हो जाता है कि तुम टुरनों फिरनों रह जाते हो। तो यही चीज़ होती है जी कि सम टाइम कोई बंदे होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है जो अल्लाह ताला ने दी होती है, और वो अथॉरिटी ये होती है कि उससे आप मखलूक खल्क़े खुदा जो है आप उसका भला करें, और उसको अगर आप अपनी खुद पसंदी और एक अपनी वो जो ढीठ पन्ना बेशरम पन्ना कह लें, एक नवा लफ्ज़ बेशरम पन्ना कैसी जा लें, आप इस्तेमाल करते रहें, रियासती अमूर के साथ आप खेलते रहें और मुल्क को और कौम को नुकसान पहुँचाते रहें, तो फिर डेफिनेटली एक वक्त आ जाता है कि वो सेब वाला साहब कि वही ਜਿਹੜੇ मामलात होंगे हैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है जी, वो वैल्यू खो देते हैं, आपकी शख्सियत वैल्यू खो देती है, आपका कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहता, ठीक है जी। फिर तो अगला दाबा भी मार के आंदा बंदे का बच्चा बन, ठीक है जी। तो अब वो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कहीं से भी जो है वो यानी रिलीफ मिलने का चांस निश्ता। हाँ, रिलीफ मिलेगा, जैसे कि मैं बड़े अरसे से पिछले 15-20 दिन से एक चीज़ मतलब कह रहा हूँ कि एक जगह पे जाकर उनको यानी रिलीफ मिलेगा कुछ अरसे तो बाद हाली तरह 4 महीने ते दूर दूर कोई नहीं, फिर गल इलैक्शन तक जाएगी, इलैक्शन हो रहनगे, एक मजबूत हुकूमत बन जाएगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ चुके होंगे, ठीक है जी। तो उस तो बाद जनाब उन्होंने रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। और वो किसी पुरसकून जगह ते बैठणगे आराम नाल मज़े नाल अपनी खिदमत करवा रहे होंगे, ठीक है जी। तो बाकी अब यहाँ जो अब इनकी ये यानी दुहाई है, इसमें मेरा वजदान यही कह रहा है कि जनाब ओ आरिफ की नाजी आलिम लोहार साहब जी, हमारे सीनियर आर्टिस्ट, जैसे कि वो आपको यानी याद ही होगा कि वो एक दफ़ा हॉस्पिटल में कहीं उनकी टांग टूट गई ना, तो क्योंकि मैं म्यूज़िक से भी रिलेटेड हूँ तो रहा भी हूँ, स्टेज भी किया है, तो उसमें उन्होंने कहा ना कि कई मारियाँ वजह कई वार वे, इसी तरह का कुछ था, किसी ने मेरी गल न सुनी, ठीक है जी। अब वो फिक्रा जहन से मेरे स्लिप हो गया, अलग मैंने एक तो ये ना कि मुझे एकदम कोई बात जहन में आती है तो मैं कर देता हूँ, कोई प्री प्लान नहीं होता कि ये बात मैंने करनी है। तो इसी तरह खान साहब भी वो आलिम लोहार साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मौसीकी में आप कह लें उस्तादों को दर्जा रखते हैं, तो उनकी तरह उन्होंने भी वाजे जो है ना यानी खान साहब मार दे पैन, ठीक है जी, लेकिन वो आलिम लोहार साहब वाले साहब के किसी ने मेरी गल ना सुनी, क्योंकि हुण गल सुनना जिहड़ा है ना वो हाँ जी, तो बस फिर ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही होगा। और फ़िलहाल जनाब कहीं भी जाकर यानी जो यानी रिलीफ मिलने का यानी इम्कान है वो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मेरी फिर भी दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब के लिए यानी आसानियाँ फरमाए। तो जो दोस्त अक्सर यानी बात भी करते हैं, बड़े गुस्से का भी इज़हार करते हैं, तो भाईजान ये वो चीज़ है जो मैं आपको सही सूरत हाल बता रहा हूँ, और वो ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ यानी बेवकूफ़ बनाते पे, अदरवाइज जनाब ऐसा मसला यानी कोई नहीं। खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो डे बाई डे गुजर रही, मेरी दुआ है ज़ाती तौर पे, ठीक है, अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके लिए और सब के लिए आसानियाँ यानी फरमाए। तो जनाब इस तरह है कि वो जनाब खान साहब की एप्लीकेशन तो गई हुई है, लेकिन मेरा ये विजदान कह रहा है कि वो बस शायद समात वास्ते भी शायद मंजूर हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर यूँ हुआ कि वक्त गुजर गया, ठीक है, बस थोड़े न बहुता समझो कोई चांस नहीं है। अब जो हालात हैं उनका सामना तो करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पाकिस्तान बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना रहम करे, फसल करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।